نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب هب لي من الصالحين. وقال فبشرناه بغلام حليم. أما بعد مقتضا حمد و ثنا کے بعد تمام قسم کی تعریف، تمام قسم کی بڑائی کبریائی حمد و ثنا اللہ رب العزت کے لیے ایک سداوار ہے، جس نے ہم سب کو اشرف المخلوقات بنایا. پھر اس کے بعد لاکھوں کروڑوں درود و سلام کو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سے ہم سب گزر رہے ہیں اور یہ ایام بہت ہی مبارک ہے. بہت ہی مبارک دنوں سے ہم اور آپ گزر رہے ہیں. اکثر اللہ کا شکر ادا کرے کہ اللہ رب العزت نے ہم سب کو زندہ رکھا ہے. معزز حاضرین تھا جس میں جو کہ بہت بڑی آزمائش تھی، ابراہیم علیہ السلام اس میں کامیاب ہو چکے، لیکن آزمائشوں کا سلسلہ ابھی ختم نہیں ہوا اور ابراہیم علیہ السلام اولاد کی نعمت سے محروم تھے. اور ابراہیم علیہ السلام کی عمر 86 سال یا بھی 86 ایئرز کی ہو چکی تھی، لیکن ابھی وہ اولاد کی نعمت سے محروم تھے اور اولاد کے لیے اللہ رب العزت سے دعا کر رہے تھے. اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ السلام کی دعا کو شرط قبولیت عطا فرمائی. دعا کیا تھی؟ رب ہب لی من الصالحین. ابراہیم علیہ السلام کی یہ دعا تھی، مجھے ایک صالح اولاد عنایت فرما. رب ہب لی من الصالحین. اللہ مریض سے اولاد مانگنے لگے اور پھر ایسی عمر میں اللہ رب العزت نے ان کے جواب میں ارشاد فرمایا فبشرناہ بغلام حلیم. ہم نے اسے ایک بردبار بیٹے کی بشارت دے دی. بیٹے اسماعیل پیدا ہو چکے. ابھی اسماعیل علیہ السلام کی عمر چند ماہ کی نہیں تھی. اللہ کی طرف سے ایک اور آزمائش، ایک اور امتحان، یعنی ساری زندگی امتحانوں میں ابراہیم علیہ السلام نے بتائی اور ہر امتحان میں، ہر آزمائش میں ابراہیم علیہ السلام کامیاب رہے. چھوٹا سا ننھا سا بچہ اسماعیل علیہ السلام، یہ آزمائش، اور وہ یہ آزمائش تھی کہ وہ اپنی بیوی ہاجرہ علیہ السلام اور اپنے بیٹے اسماعیل کو عرب کے میدان میں چھوڑائی. حاضرین جمعہ، ابراہیم علیہ السلام نے عہد کے حکم کی تعبیر کی اور دونوں کو ایک ایسے میدان میں چھوڑ آئے جہاں کوئی آبادی نہ تھی، نہ کوئی چرت مرت، اور نہ وہاں کوئی سبزہ، نہ کوئی جھاڑ تھا. یعنی ریگستان میں، کھلے ریگستان میں اللہ اپنے حکم سے چھوڑ کر جانے لگے. ساتھ میں چند کھانے کی چیزیں اور تھوڑا سا پانی دے دیا. ہاجرہ علیہ السلام پریشان ہو گئی کہ ایسے بچے زمین میں، ایسی ریگستان زمین میں مجھے اکیلا چھوڑا جا رہا ہے. سوال ہوتا ہے کیا معاملہ ہے؟ ابراہیم علیہ السلام خاموش ہیں، کوئی جواب نہیں. دوسری مرتبہ سوال کرتی ہیں، ہاجرہ علیہ السلام پوچھتی ہے اے ابراہیم بتاؤ آخر کیا معاملہ ہے؟
आप ऐसे खुले रेगिस्तान में हमें क्यों छोड़ रहे हैं? कोई आबादी नहीं है, हम कैसे गुज़ार करें? इब्राहीम अलैहिस्सलाम खामोश रहे। तीसरी मर्तबा दौड़ती हुई आती है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम के कपड़े को पकड़कर झिंझोड़ कर पूछती है, "ऐ इब्राहीम, क्या ये तुम्हारे अल्लाह का हुक्म है? क्या ये अल्लाह का हुक्म है?" इब्राहीम अलैहिस्सलाम जवाब देते हैं, "हाँ, ये मेरे रब का हुक्म है।" तो हाजरा अलैहिस्सलाम फ़ौरन जवाब देती है, "अच्छा ठीक है, जब रब का हुक्म है तो ऐ इब्राहीम, रब हम दोनों को कभी ज़ाया नहीं करेगा। जो चीज़ें की वो ख़त्म हो गई। इस्माइल अलैहिस्सलाम पानी के लिए तड़प रहे हैं। हाजरा अलैहिस्सलाम दौड़ रही है सफ़ा से मरवा, सफ़ा से मरवा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को ये अदा कितनी पसंद आई। हर हाजी सफ़ा से मरवा तक साल चक्कर लगाता है। चाहे वो उम्रे के लिए जाए, चाहे वो हज के लिए जाए। इस्माइल अलैहिस्सलाम जहाँ पर पेड़ लगा रहे थे, अल्लाह के हुक्म से एक फव्वारा जारी हो गया। हाजरा अलैहिस्सलाम फिसलती गई, ज़मज़म ज़मज़म ज़मज़म। तो वो आज तक वो कुआं मौजूद है जो हर हाजी यानी ज़मज़म के कुएं से, ज़मज़म के पानी से सैराब होता है। बतलाने का मकसद यही है कि ये और बड़ी आजमाइश थी हाजरा अलैहिस्सलाम इब्राहीम अलैहिस्सलाम की, यानी एक छोटे से नन्हे से बच्चे को लेकर खुले रेगिस्तान में रह जाना। इब्राहीम अलैहिस्सलाम उस काम या उस इम्तिहान में भी कामयाब हो चुके। इब्राहीम अलैहिस्सलाम का इस इम्तिहान में कामयाब होना भी, और फिर उसके बाद में और सबसे बड़ी आजमाइश इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर डाल दी गई। बेटे की उम्र 13 साल वो पहुंच चुकी, नौजवान बेटा है और एक ही बेटा है इस्माइल अलैहिस्सलाम। ठीक है। और फिर इब्राहीम अलैहिस्सलाम की उम्र करीब 100 या 100 के ऊपर पहुंच चुकी। रब का हुक्म बेटे के सामने जाहिर करते हैं, बेटे के सामने बता रहे हैं, अय मेरे बेटे, फलम्मा बलगा मअहुस्सअय क़ाल या बुनय्या इन्नी अरा फिल मनामी अन्नी अज़बहुका फंज़ुर माज़ा तरा। बेटे की उम्र 13 साल, लगभग 14 साल है। जवानी की डेज पर कदम रख चुका है। एक लौती औलाद है। फरमा रहे हैं, मेरे बेटे, मैंने ख्वाब में देखा कि मैं खुद अपने हाथों से तुझे ज़ुबाह कर रहा हूँ। बेटे, तुम्हारी क्या राय है? बाप अपने बेटे से ये सवाल कर रहा है। हर बाप को बेटा प्यारा होता है, लेकिन इब्राहीम अलैहिस्सलाम ये सवाल कर रहे हैं, मैंने ख्वाब में देखा कि तुझे मैं ये अपने हाथों से ज़ुबाह कर रहा हूँ। बेटे इस्माइल जवाब देते हैं, या अबती फ़अल मा तुअमर सतजिदुनी इंशाअल्लाह मिनस साबिरीन। अब्बा जान, अल्लाह ने तरफ से जो हुक्म हुआ है आप उसे जरूर कीजिए, आप मुझे साबिरीन और शाकिरीन में से पाएंगे। बाप बेटे दोनों राजी हो चुके। बेटा सुबह होने के लिए तैयार हुआ और वो बाप जिसकी उम्र 100 साल से ज़ायद हो चुकी, अपने लब्ते जिगर को सुबह करने के लिए, एक मामूली सी ख्वाब की ताबीर मुकम्मल करने के लिए अपने घर को छोड़कर मीना के मैदान में चल बसे। हाथ में छुरी है। फलम्मा अस्लमा, बस जब दोनों तैयार हो गए, वतल्लकू दिल जबीन, और उसे औंधे मुंह लिटा दिया गया इस्माइल। बस ज़ुबाह करना बाकी है। इस्माइल अलैहिस्सलाम जमीन पर लेट कर अब्बा को, यानी ये बातें अपनी जुबान से कह रहे हैं, अब्बा जान, आप मेरे हाथ पाँव रस्सी से बांध दीजिए, जैसे एक जानवर को बना जाता है। इस्माइल अलैहिस्सलाम कह रहे हैं, अब्बा जान, आप अपने कपड़ों को समेट दे, कहीं खून के फुक्कारे आपके कपड़ों को लग जाए, खून के छींटे आपके कपड़ों को लग जाए और मेरी वालदा को सख्त सदमा पहुंचे। इब्राहीम अलैहिस्सलाम इस्माइल अलैहिस्सलाम फिर कह रहे हैं, अब्बा जान, आप अपने आंखों पर पट्टी बांध ले, कहीं बेटे की मोहब्बत गालिब ना आ जाए। अल्लाह। और आंख उसे औंधा काटिए, यानी गर्दन से काटिए, गले से। इब्राहीम अलैहिस्सलाम औंधे वो
इस्माइल अलैहिस्सलाम को लिटा देते हैं, हाथ पाँव बांध दिए जाते हैं, हाथों पर पट्टी लगा दी जाती है। अल्लाह अकबर। सुबह करना बाकी है, अल्लाह की तरफ से आसमान से आवाज आती है, ऐ इब्राहिम तुम कामयाब हो जाओ। इन्ना हाज़ा लहुवल बलाउल मुबीन, बेशक ये खुली आजमाइश है। वो फदैनाहु बिज़िब्हिन अज़ीम, और हमने उसके बदले में एक बड़ी कुर्बानी दी। व तरकनाहु अलैहि फिल आखिरीन, और हमने इसके बाद में आने वालों के लिए उसको बाकी रखा। ये सुन्नत अबीकुम इब्राहिम, हाज़रीन जुमा पाबंदी सुन्नत है इब्राहिम अलैहिस्सलाम। और ये पुलसिरात की सवारियां होने वाली हैं। क़यामत के दिन जो जानवर आप कुर्बान करने वाले हैं, वहां पर पेश किया जाएगा, पुलसिरात की सवारियां बनाई जाएगी। लिहाजा जब हम कुर्बानी का इरादा करें तो सबसे पहले ये बात जहन में रख ले, नाखून और बाल कुर्बानी का जानवर ज़ुबा होने तक ना करने। हर घर से कुर्बानी है, घर में जितने कमाने वाले हैं हर घर से कुर्बानी है। घर में 10 कमाने वाले हैं, 10 की तरफ से कुर्बानी जायज़ है, देना है। 10 खाने वाले हैं, 1 कमाने वाला है, 1 कुर्बानी सारे घर की तरफ से काफी। कुर्बानी में हिस्सा लेना इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सुन्नत को जिंदा करना हम सब के लिए जरूरी। और 4 किस्म के जानवर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यह हदीस है, सुनन अबू दाऊद हदीस नंबर 2802। 4 किस्म के जानवर कुर्बानी के लिए जायज़ नहीं। अभी उन लम्हात, उन वक्तों से हम गुजर रहे हैं कि हर कोई जानवर खरीद रहा है, कुर्बानी के लिए अपना अपना जानवर खरीद रहा है। ये बात ज़हन में रखे कि नंबर 1, जानवर काना ना, यानी वो सीधा कहरा हुआ है, उसकी आंखें टेढ़ी है, देसी आंख वाला कुर्बानी के लिए जायज़ नहीं। और नंबर 2, बीमार ना हो, कम दाम में मिला भी ले दो। कम दाम में कम कीमत में भी रहा है, फिर महंगाई बहुत है, हमारी इस्तिताअत नहीं है। आप इस्तिताअत के मुताबिक एक हिस्सा दे ले, अल्लाह को वो भी मंजूर है। लेकिन दिखावे के लिए बड़ा जानवर और बीमार जानवर कम कीमत में ले रहे हैं, तो ये जानवर कुर्बानी के लिए जायज़ नहीं है। नंबर 3, लंगड़ा ना हो, जानवर को चाहे वो बैल हो बकरा हो चला कर देखे, क्योंकि ये पुलसिरात की सवारियां बनने वाली हैं, पुलसिरात की सवारियां बनने वाली है। तो आप जानवर देते वक्त ये बात का ख्याल रखें कि काना ना हो, बीमार ना हो, लबड़ा ना, और नंबर 4, दुबदा और बूढ़ा ना हो, जिसकी हड्डियां नजर आ रही, बूढ़ा ना हो, जो कमजोर हो चुका है, जिसको उम्र ज़ायदा हो चुकी है, तो ऐसे जानवर को बनने के लिए जायज़ नहीं है। इस बात का ख्याल रखें। जानवर की उम्र, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यह हदीस है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऊँट 5 साल का हो, गाय 2 साल की हो, और बकरा 1 साल का मुसन्ना हो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हदीस सुनन इब्न माजा हदीस नंबर 3123। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, इस्तिकात रहने के बावजूद हीला बहाना बनाकर कुर्बानी में हिस्सा ना लेने वालों के लिए, हीला बहाना खर्च है, परेशानियां बहुत है, एक सब को लेकर चलना है, परेशानियों को लेकर चलना है, बीमारियों को लेकर चलना है, कर्ज हो चुका है, कर्ज लेकर चलना है, कर्ज लेकर भी आप कुर्बानी दे सकते हैं। घर में फंक्शन है, आप लाखों रुपए कर्ज ले रहे हैं, घर में थोड़ा अतीजे की दावत है, आप 2 लाख रुपए का या कि उसमें इसरार फजूल खर्ची कर रहे हैं, आप सुबह करके बाहर सकते हैं, लेकिन फिर भी आप उसमें हिस्सा ले रहे हैं, ये कुर्बानी है, इसमें हिस्सा लेना जरूरी है। कितनी बड़ी वईद आई है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस्तिताअत रखने के बावजूद जो कुर्बानी में हिस्सा ना ले, वो मुसलमानों के ईद दम में ना आए। अल्लाह अकबर। हिस्सा लेना कुर्बानी में बहुत जरूरी है। कोशिश ये करे कि हर घर में जाकर सुबह की बात सुना गया, पूछा गया ये अरफा क्या है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 2 साल के गुनाहों का कफ़ारा। सुभान अल्लाह। एक रोजा 2 साल के गुनाहों का कफ़ारा है। ईद से एक दिन पहले अल्लाह हम सबको समय से ज्यादा सही मानों में समझने अमल करने की तौफीक इनायत फरमाए। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसनतम व क़िना अज़ाबन्नार। रब्बना ज़लमना अनफुसना
وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ رب ارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم احفظنا من كل بلاء الدنیا و عذاب الآخرہ۔ اے اللہ ہم گنہگار ہیں، اے اللہ ہم خطا کار ہیں، اے اللہ تیرے بندے تیری بارگاہ میں تجھ سے معافی کا سوال کرتے ہیں۔ اے اللہ ہم سب کو معاف فرما، اے اللہ ہم سب کو معاف فرما، اے اللہ ہم سب کو معاف فرما۔ اے اللہ تیری رحمت بڑی وسیع ہے، اے اللہ تیری رحمت بڑی وسیع ہے، تو اپنی رحمت سے، اپنے فضل اور اپنے کرم سے ہم سب کے گناہوں پر پردہ ڈال دے۔